know the associativity and the precedence operator. So just read here. If we are having brackets over here, then we will do the or execute the equation from left to right. Okay, it means if we are having this equation and we are having two brackets, so associativity says that you have to solve left first and then later on part. So here this will be executed first and this will be executed later on. If we are having these operators, then the associative will be right to left. It means अगर पहले प्लस प्लस लिखा है तो पहले प्लस प्लस ऑन द राइट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और ऑन द लेफ्ट अगर प्लस प्लस दोबारा लिखा है तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा और लेटर ऑन ये वाला एग्जीक्यूट होगा. So to solve any big expression, we have to use this associativity and precedence start. और अगर आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन आती है और आप किसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू विल बी स्टार्टिंग मेनी मोर लैंग्वेजेस, यू कैन सिंपली चेक द एसोसिएटिव एंड प्रेसिडेंस चार्ट इन दैट लैंग्वेज. तो आपको इमेजेस के अंदर डायरेक्टली वो चार्ट आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड देन बाय यूजिंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट what equation will be solved first, and according to that you have to solve this. So if you are doing it for Java or Python, you have to learn according to that language, that which equation will be solved first. It could be same or different. Now next is typecasting. I'll give you one example. What is this? We have not defined a character value till that. So I am writing character A. Print this character, I have to write percentile C. The character is this. Okay, let's print the output. The output is the character is A, but our topic is typecasting. This A is a character value, but in computer every symbol, every character is represented in binary number. Is every binary number has a decimal number. Decimal number मतलब numerical number. It means this A must be having a numerical number, and for numerical number we are having a format specifier called percentile D. So here what are we doing? We have defined a variable P whose value is A and it is character by nature, but when we are printing it, we are not writing percentile C. If we will write percentile C, the output will be A, but we are writing percentile D. तो इसका आउटपुट इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग आता है. It means the integer number associated with this A will be printed. So at position 9, the binary number having value 97 represents A in your system. Okay, जो भी 97 का binary form होगा, that binary form is A in your system. Understood? If we are writing Z, small z, then 122 will be the number that is associated with small z. If we are writing capital Z, it is different from small z. For small z it was 122 and capital Z it is 90. Similarly for capital A it is 65. So you can check that what is the number as associated with any symbol. So for hash this is 35. Now this number is ASCII value for this symbol. ASCII value मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो किसी बाइनरी फॉर्म में होगा, एंड दैट बाइनरी फॉर्म मस्ट बी हैविंग अ डेसिमल नंबर जो कन्वर्टेड होता है 8421 सीरीज से.
that number is this number, and this is ASCII value for every symbol. And what I am doing here is the type casting, because this is character type, and I'm converting this into other data type, and this is integer here. Okay, similarly I can do for integer to character. So if I am writing int q is equal to 65, okay, and if I am printing here, so if I'll print q, the value will be 65 because I have written 65 here, but I am not interested in seeing the value 65. I will typecast this integer, because q is integer type, into the character value percentile C. Now see, the output is A, because the character associated with this number is A. Similarly, you can also that at this number what could be the character value. So at 122, what we have done, we have printed 122, but I have typecasted it into character, and the value character at this number of this number is small z. Okay, this is typecasting, where I am converting one data type into another. Okay, now this is implicit casting. Implicit casting, what is implicit? जो अपने आप हो रहा है, मैं इसको कन्वर्ट एक्सप्लिसिटली नहीं कर रही हूँ. एक्सप्लिसिट इज समथिंग जो मैं कह कर रही हूँ. इट मीन्स इफ आई एम सेइंग दैट एवरीवन शुड लिसन, तो ये मैं कह रही हूँ एक्सप्लिसिटली, बट इट इज इम्प्लिसिट. आपको खुद ही समझना चाहिए दैट आपको सुनना चाहिए. तो देर आर टू थिंग्स ऑलवेज दैट यू मस्ट लिसन. तो अगर इफ आई एम स्पीकिंग इट, इट इज एक्सप्लिसिट, मतलब मैं कह कर करवा रही हूँ. एंड इम्प्लिसिट का मतलब है इट इज ऑटोमेटिकली, आपको समझना चाहिए कि आपको सुनना चाहिए. So this is implicit conversion, where I am not writing any command. This is done automatically by the compiler, and this can be done explicitly. So typecasting is the way to convert one variable to another variable. There are two ways. One of the way is implicit casting, where compiler do it automatically, what we were doing it right now, or it could be termed as type promotion. And another one is explicit typecasting, जो मैं खुद से करूँगी, मतलब I'll do it forcefully. So I'll do one forceful type conversion in D is equal to, I'm having one number 1 2 3 4 0.45. So this is floating type of number. This is floating type of number. So if I want to print this floating type of number, the format specifier for floating type of number is F, percentile F. Okay. So if I want to print this, it will print 123.456 in 001. लास्ट में जो 001 आया, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम प्रिंट कराते हैं तो वो लास्ट की 6 डिजिट्स को प्रिंट करवाता है. एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज देम, यू कैन डू इट बाय 0.3. ओके, सो नाउ द नंबर ऑफ count of the number after decimal will be decreased. But we are not interested in this thing. We want to learn what is explicit casting. So explicit is forceful. We will be doing this, user will be doing this, or programmer will be doing this. So there is a proper syntax for this, that it can be done by, यहाँ पे expression लिखना है, and in bracket you need to write
राइट द डेटा टाइप, सो विल बी डूइंग इट हियर। तो मुझे इस फ्लोट को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, सो इन ब्रैकेट आई विल बी राइटिंग दैट डेटा टाइप जिसमें हमें इस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है। दिस g इज फ्लोट and I'm forcefully converting it into int. Now this d is integer type of variable. It means the format specifier must be changed to d. Okay, so now we will print this and the output is 123 because this number is converted to int, and in int value this after decimal values are not printed. Now you can do it for character also. Let's change it to 122. You can relate more. So now d was floating type of value converted to character value. Now if this d is now character, you have to write percentile c here. Now we will see the output. Now the output is small z. The ASCII value for small z is 122 and the floating number was 122. It is converted to character here, so 122 character value is small z. So this is explicit casting where I am converting one data type to another. Now there are plenty of data types we have seen, unsigned, signed, character. मतलब unsigned और signed आप किसी भी data type के आगे लगा दो तो उसका range बदल जाता है. So you can change any data type to any data type. So this is explicit if you are doing this. If compiler is doing this, then it is termed as implicit, जो automatically हो रहा है. Okay, so this was explicit and implicit typecasting. Just wait. हम इसका एप्लीकेशन क्या होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनसाइड द कंप्यूटर है. कभी कभी जब एक्सप्रेशंस मतलब बिग फॉर्मूला जब इवालुएट होते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं और फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू लेते हैं. अब हमें अगर उन्हें ऐड करना है तो उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए. तो इन सम केसेस कंपाइलर इन डेटा टाइप को खुद से एक जैसा कर देता है, तो उसको उसके लिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. या तो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इंटीजर को फ्लोट में मतलब फ्लोट को इंटीजर में या इंटीजर को फ्लोट में. तो जब कंप्यूटर को ये चेंज करने होते हैं डेटा टाइप, तब वो ये टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट करता है. और कभी कभी ऐसे केसेस आएंगे जब आपको कन्वर्ट करना होगा और तब आप ये टाइप कास्टिंग खुद करेंगे. तो दीज आर टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस, इसलिए ये चीज यूज होती है और ये काफी ज्यादा यूज होती है. जैसे हम स्ट्रिंग वैल्यूज पे काम करते हैं ज्यादातर इनपुट लेने के लिए बाकी और लैंग्वेजेस में. तो ज्यादातर हम इनपुट स्ट्रिंग में लेते हैं. अब स्ट्रिंग होती है आपकी डबल कोट्स में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. So if that sequence of character is 49, but 49 is not a sequence of character. हमें जैसे मान लो आप किसी का एप्लीकेशन, तो शुरू से बताती हूँ कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं और ये वाले जो लैंग्वेजेस हैं वो इनपुट लेते हैं, जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं यूजर से इनपुट लेते हैं, वो स्ट्रिंग में ही ले पाते हैं. ओके, जैसे पाइथन में ओनली स्ट्रिंग ही यूजर से इनपुट लिया जाता है. सी में तो फिर भी हम ले लेते हैं, बाकी और लैंग्वेजेस में देयर इज सम कंस्ट्रेंट कि हम इनपुट सिर्फ स्ट्रिंग में ले पाते हैं. इट मींस द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग. ओके, ने स्ट्रिंग में एज लिया है, so the input will be 49, but this 49 is string क्योंकि मैंने input लिया है वो string type का होता है. But I want age and age has to be a numerical value. तो मुझे उस केस में इस 49 को जो string था उसे typecast करना पड़ेगा integer में. So this is the real application of typecasting and typecasting exists. क्योंकि हम ऐसा हो सकता है कि इनपुट किसी और डेटा टाइप में ले और हमें इन आवर प्रोग्राम
वो किसी और डेटा टाइप में चाहिए हो, ठीक है? Okay, ma'am. Got this? Because in C we are having plenty of input statement, but in other languages we are not having. But there is also a concept of typecasting. But ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा पाइथन में. पाइथन में एवरीथिंग विल बी टाइपकास्टेड. तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मेन मोटो सी लर्न करना नहीं है, मतलब बहुत बेसिक से आपको अदर लैंग्वेजेस सीखनी है. तो टाइपकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. मैम. हाँ जी. मैम जैसे कि अभी आपने डी जो हमारा वेरिएबल था उसका इनिशियल डेटा टाइप जो हमने डिक्लेयर किया तो वो फ्लोट था. फिर आपने प्रिंट स्टेटमेंट में फिर उसे आपको कैरेक्टर आपने इंट में चेंज कर दिया. और जहाँ जावा होता है वहाँ पे हम लोग जब पहले इनिशियलाइज करते हैं प्रिंट में तो वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता क्या मैम? इसमें भी मैम नहीं कर सकते क्या पहले प्रिंट में ही, प्रिंट से पहले डिक्लेयर चेंज? हाँ कर सकते हैं. ये लो यही है, मतलब जब एग्जाम्पल कराते हैं तो जो मन में आ जाए हम वो कर लेते हैं. तो ये लो इसको ना प्रिंट करा के ए को, ठीक है? यही कह रहे हो ना? हाँ मैम. हाँ हाँ, दिस इज यही ऑल बोला. वैलिड, दिस इज ऑल वैलिड. इट्स जस्ट दैट कि 5 दिन है, जितना जल्दी जल्दी लगता है कि करा दो वैसे ही कराया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड. आप इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं. देन असाइन दिस स्टेटमेंट हेयर, और फिर आप इस ए को यहाँ पे प्रिंट करा दो. तो अब इस ए का डेटा टाइप कैरेक्टर हो गया, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी हो गया. जो मैं अगर मैं दूसरी बार का कमांड लाइन में तो उसको मैं दूसरे मतलब वेरिएबल में डालना पड़ेगा. जो डी मतलब पहले डी का तो फिर इसको मैं किसी और में स्टोर कराना पड़ेगा ना, जैसे आपने डी को ए में स्टोर करा दिया. हाँ, मुझे मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना, यही 2 तरीके हैं इसे हाँ. प्रिंट करने के. या तो आप इसे किसी और वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद प्रिंट कराओ, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंटफ में प्रिंट करा दो. और ये चीज जावा में भी अवेलेबल है, दोनों. ईदर यू कैन डू इट इन system.out.println और यू कैन डू इट लाइक दिस व्हाइल डिक्लेयरिंग. ओके. और अगर आपको जावा आती है तो आपको पता होगा कि वहां पे तो सारा ही डेटा टाइप कास्टेड होता है. यस मैम. इंटीजर डॉट पारसेंट, फ्लोटिंग डॉट पारसेंट. तो वो जो पारसेंट है वो कन्वर्जन ही कर रहा है. ऑल डेटा इज टाइप कास्टेड देयर. एंड द गर्ल हु वाज आस्किंग मी, जावा एक ऐसा लैंग्वेज है, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सारा इनपुट ही टाइप कास्टिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि एवरी इनपुट इज लाइक स्ट्रिंग इनपुट. और सी इन सी, आई एम सेइंग दैट लुक इन सी लैंग्वेज अभी तक हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा भी नहीं है. एंड इन अदर लैंग्वेजेस वहाँ पे स्टार्ट ही सी स्ट्रिंग से किया जाएगा, ठीक है? अब हम इनपुट लेने की तैयारी करते हैं. अभी तक हमने जो सारा काम किया है वो सारा हमने डेटा टाइप की वैल्यूज ले लेके किया है. पर अब हम ये चाहते हैं कि यूजर इनपुट दें, ठीक है? So let's start with the integer output. I am providing tab here. This tab is very important for you all because in other languages these ये जो tab होता है, indentation होता है, ये उनका core होता है. So I am writing int first variable. This is a convention that you must use all small letters. If you are writing capital letter, it means something else. इसका मतलब बदल जाता है. तो आप सारे वैल्यूज को, वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर में लेना. नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल. आई वांट कि ये जो वेरिएबल है ये यूजर इनपुट करवाए, यूजर इनपुट करवाए. तो टू अंडरस्टैंड कि यूजर को ये समझ में आए कि उसे इनपुट देना है, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं दैट एंटर द वैल्यू ऑफ एफ where I'm using cat. Now this is, I have opened this for the example. यहाँ पे मुझे 5 प्लस 9 करना है इज इक्वल टू. तो ये जो 5 और 9 मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है ये यूजर इनपुट है, ओके? एंड द 14 इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड.
तो अभी तक हम इस 5 और 9 को प्रोग्राम में ही ले रहे थे, बट इट इज नॉट द केस. आपको जो वैल्यूज है वो यूजर से लेनी होगी. एंड टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर we are having one function that is scanf. Okay, scan function. There is one function called scanf which allows you to take input from the user. एक फंक्शन है तो ब्रैकेट का पेयर आएगा, सेमीकोलन एट एंड. दिस इज इम्पोर्टेंट. अब जो वेरिएबल आपको यहाँ पे यूजर से लेना है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे. स्पेलिंग मस्ट बी सेम, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा. और इसके आगे आप लगाओगे एम्परसेंड. एम्परसेंड. अब एम्परसेंड क्या? मैम आपका माइक म्यूट है. No, you are not audible. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. ओके, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस Yes, मैम. ma'am. Okay. Don't mute me. Whosoever it is, please leave the this team. Don't annoy your friends and me. Okay. So scanf is the function. Let's start from here. Scanf is the function that allows the user to give the input to the program. Now, if this is a function, this parenthesis pair is very important, and after that semicolon will be there. In this scanf function, you have to write the variable name you want to take user input for, and here you will write ampersand. This ampersand is important. I'll tell you just कि अभी इसका मतलब क्या होता है. And before this, comma for separation and double quotes. You are not audible. And you are Double. not audible. Hello. My voice must be clear. My mic is on. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are completely audible. Please go ahead. Okay. Yes, Some ma'am. students are saying Yes, that ma'am, you are audible. Okay. So in scanf statement, we will write the variable name. Before this, we will write this ampersand, and in these double quotes, I'll write the format specifier for this वेरिएबल. सो जो भी इस वेरिएबल का डेटा टाइप है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर आएगा. ओके. नाउ दिस स्टेटमेंट विल अलाउज यू कि आप यूजर से इनपुट ले. आपका यूजर से इनपुट आ गया, देन अब हम इसे कराते हैं प्रिंट. हम एम्परसेंड नहीं लगाते हैं, बट इन स्कैनफ दिस एम्परसेंड इज इम्पोर्टेंट. ओके. सो अभी हमने क्या किया है, सी the first line will say that the variable is declared. Second line will say that enter the value of f var. It is simply printed on the console screen, so it is printed. Now it is, next line is saying scanf. Scanf mean that you have to give one value because only 1 percentile d is written over here. I am writing 3 and enter. So whenever I write some integer value because it's percentile d and enter, that value is stored on the address of f var. It means the 3 is stored on f var, and f var will be having value 3, and that goes here, and the output is printed according to this. The value is 3. Okay. Now let us understand that why ampersand.
int x is equal to 10 we were writing yesterday. तो मैंने आपको बताया था कि this x is the reference name whose value is 10 and this must be having some address. You can take it like this कि ये मैं हूँ, ये मेरे घर का नाम है और ये मेरे घर का एड्रेस है. These are the three information variable declaration has. Now when we are writing int f where, not this semicolon, it means a space is created whose name is f where and address is something but value is not there. When we are writing this statement, it means a space is created, value is not there, a name is there and the address is there. Okay, so after this scanf statement we will get the value, and this scanf we are writing ampersand because ampersand is address of operator. Ampersand is address of operator. So this line means that address of f var. तो जो भी f var का एड्रेस है उस पर इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट ले लो. ओके, ये लाइन समझ में आई आपको? एम्परसेंड का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड द एड्रेस ऑफ f var टेक द इनपुट एज इंटीजर वैल्यू. So after this scanf statement we are allowed to take input for this place and that must be of integer type. It means that could be an integer value. So if we are writing 3 or 10 or 1200, that will be stored at this space and later on by using this space this can be printed here. Understood the scanf statement? Now we will add two numbers by using by taking user input. So int second. Now we have to take user input for two values. So we are changing this statement. This statement is not important. ये सिर्फ यूजर को समझाने के लिए है कि कितने इनपुट लेने हैं. तो जब भी आप कोई इनपुट लेना चाहते हो तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि एक इनपुट लेना है, तो उसे समझाने के लिए यू विल राइट दिस स्टेटमेंट. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसके बिना इनपुट नहीं आएगा. ओके, दिस इज जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड द यूजर दैट यू हैव टू इनपुट द वैल्यू. नाउ वी विल राइट दैट एंटर टू वैल्यूज, जिससे हमें ये समझ आएगा कि हमें दो वैल्यूज देनी हैं. तो अगर दो वैल्यूज देनी है तो वी विल राइट टू वेरिएबल्स हियर. So second variable is svar and before that ampersand is important because it will say that the address of second variable and you have to write the format specifier for this second variable. This sequence must be same. The integer this is character, तो पहले percentile d आएगा फिर percentile c आएगा. Okay, now here we are having both integer, so both will be percentile d, and please don't put space in between, it may create problem. Don't put space here because then you have to provide space on the console also, so no need of space here. Simply write this, don't provide space here, don't provide space here, this is all irrelevant. So simply write percentile d format specifier for these variables. So let's run this. Okay. Let's produce one output here. Int res var plus and we will print res. एंटर टू वैल्यूज. अब इस एंटर टू वैल्यू से यूजर को ये समझ आएगा कि दो वैल्यूज एंटर करानी है 23 एंड सम इज प्रोड्यूस.
depending upon the formula I have applied here, the output is generated. Okay, this is the simplest program of C. If you understand this, you can go ahead. So are you able to grab it कि ये क्या लिखा है? अगर मैं आप सबको 2 मिनट दूं to multiply two numbers, can you write that? Just answer me कि अगर मैं आपको बोलूं Yes, कि ma'am. ओके हम Yes, क्या ma'am. चेंज करेंगे इसमें? प्लस का साइन ओके, वेरी गुड. हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है. मल्टीपल का साइन आ जाएगा. हाँ, सिंपल. अभी इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अब आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ से सिनेरियो ऑफ लर्निंग विल चेंज. आफ्टर दिस प्रोग्राम सो मेनी न्यू थिंग्स यू विल सी. अब हम बेसिक पे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा एडवांस शुरू हो जाएगा. तो अगर किसी को इस प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज टेल हियर. सबको समझ में आया? आई एम एज्यूमिंग देन. ओके, स्कैनफ स्टेटमेंट सबको समझ में आई? मैं इसको एक बार चेंज कर देती हूँ फ्लोट में. मैंने अब पहला वेरिएबल फ्लोट का कर दिया, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप आएगा दैट विल. हाँ जी मैम 7th लाइन में आपने इंट और आरईएस दोनों एक साथ किया है. हाँ, इट इज वैलिड बिकॉज आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड आरईएस हियर. अगर मैं इसे यहाँ लिख देती, देन आई कैन राइट आरईएस. Yes, then I can do it like this. Okay, one more thing, we can declare all of these in one statement. ये सारी चीजें हम एक साथ कर सकते हैं. तो अपने तीनों डेटा टाइप फ्लोट के हो गए. तो I'll change all the format specifiers. Now my all three variables are of float type. So I have changed all data type format specifiers. Percentile F, enter two values 20.45, 30. Output is generated, and in floating point numbers last 6 digits is always shown अगर आप उसे truncate नहीं कर रहे. Okay, anything else you want to ask? No, ma'am. All right. स्कैनफ स्टेटमेंट के लिए हम एक और ले लेते हैं, एक कैरेक्टर के लिए ले लेते हैं. अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर C लेते हैं तो स्कैनफ स्टेटमेंट write ampersand, semicolon is important. We will write percentile C. अच्छा, कैरेक्टर के लिए I'll tell you something very important. That is very important. जो नहीं सुन रहा है प्लीज सुन लीजिए अगर आप later on प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं. जो कैरेक्टर होता है that is of only 1 byte, so it is executed very fast. So there could be a case in your computer कि वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजर से ले ले पर कैरेक्टर यूजर से ना ले. ओके, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो ये वाला स्टेटमेंट बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, बहुत फास्ट. तो इट कुड बी लाइक दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड लेटर ऑन दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड. So for that, only for character, apply a space here. Only for character I am saying you, whenever you are using user input for character, please apply space over here. Otherwise there could be a case in your compiler that this statement is ignored. Okay, so let's print this character value. Before this scanf we will write one statement, otherwise how will I get to know that I have to enter a character value? This is not important,
but this is a good habit to write a printf statement. Enter character value. I'll write slash n here to beautify my output, slash n here and a slash n here to beautify my output. Enter two values, 5. Enter a character value. I'll write G. So the output is generated, the sum of these two numbers and this. Okay. Now let's move to the next part. आप सबको यूजर इनपुट लेना आ गया? Try that yourself. Now our next topic is if else. I'll change the slide. Whenever I am writing a keyword, that all must be in small case. If by chance it is capital on any document, that is the mistake. Okay, so every keyword will be in small case only. So our next topic is if else statement, or before I'll write decision. डिसीजन टेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे थे उसका जो फ्लो था, एंट्री पॉइंट वाज दिस मेन, लेटर ऑन दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट. It means one by one every statement was getting executed in the order I have written, in the order a programmer is writing. But there could be a case कि मेरे दो रास्ते हैं और अगर ये होता है तो हम इधर जाएंगे, अगर ये होता है तो इधर जाएंगे. तो there could be a case where you need to take the decision, go to this way or that way depending on some condition. Okay, so these kind of statements are called decision taking statements. So there are two ways through which we can take a decision in C language. One statement is if else, and second is your switch statement. Okay, so there are two things, if else and switch, through which we can take the decisions. And decisions are like that, if the input is M, we will multiply. If the input is A, we will add. If the input is S, we will subtract. Okay, decision taking statement, it means we will be ignoring some of the lines in the program. All right, hope you understood the meaning of decision taking statement. So first topic is if else statement. So in if else statement we can write the code through which we can ignore one part. We will be writing if this condition is true. यहाँ पे हम कोई कंडीशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ये मैं यहाँ लिख देती हूँ. ये जो कंडीशन है इसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. Now, starting with this, if this condition is true, then जो इसके बाद वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, जस्ट लाइक printf है. ठीक है, अब हम इसे कोड करते हैं कि ये कैसे चलता है. एंड देन लेटर ऑन वी आर हैविंग else.
इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन वी विल राइट printf so depending on this condition we will switch the statements. ये एग्जीक्यूट होगी अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, दिस कंडीशन. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलता है. ओके, so this condition must give output either false or true. Okay, so we'll program it. We'll see slide 1. This slide is saying the if statement is used to conditionally execute a statement or a block of statements. कंडीशन लगी होगी तो कंडीशनली हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स. Execute one thing when the condition is true, something else when the condition is false. It means it is saying कोई कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा. तो लेट्स चेंज द प्रोग्राम. आई एम हैविंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस. लेट्स डू दैट. My first question is to check. I will take two integers and I'll check if they are equal or not. So I'll copy this question. This is the good habit to write your program name at the top of the program so that you can know your मतलब आप देख सकते हो कि आप कर क्या रहे हो. तो ये चीजें जनरली जब हम नए होते हैं तब करते हैं. सो आवर प्रोग्राम इज सेइंग टू टेक दी टू यूजर इनपुट and check if these two user inputs are equal or not. So the first point is to take the two user inputs. So let's take int x comma y semicolon printf enter to value and it scanf statement semicolon percentile d that comma. There are two values. I'll write 2 ampersand, one for x comma are important and then y. It means these two statements will this statement will allow me to take two user inputs. Now saying that you need to check if these two values are equal or not. So first point, do you remember कि हम दो numbers equal हैं वो कैसे check कर सकते हैं? Yesterday we did this. दो numbers equal है या यस मैम. चेक Double- करा के डबल इक्वल्स टू करके. yes double equals करके. अगर मैं single equal लगाऊंगी, if I write x is equal to y, तो जो भी y की वैल्यू होगी वो x में असाइन हो जाएगी. तो ये इक्वालिटी चेक नहीं करेगा. इक्वालिटी चेक करेगा हमारा डबल इक्वल साइन, दैट इज इक्वालिटी ऑपरेटर. इट मीन दिस इज द कंडीशन. तो हमें कंडीशन मिल गई कि हम कंडीशन क्या लगाएंगे. नाउ वी नीड टू नो द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स. क्योंकि सी में सारी चीजें सिंटैक्स बेस्ड होती है तो वी मस्ट नो द सिंटैक्स. So what is the syntax? Syntax is हम सबसे पहले if लिखेंगे, in bracket we will write the expression and then we will write the statements. और अगर आपके statement else part आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, otherwise नहीं लिखेंगे. तो हमें condition मिल गई है. तो the keyword for if else is if. In bracket we write the condition. We are having condition x is equal to y and we will press tab because this is the new body of if. So we will, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम सिंपली लिखवा लेते हैं that these values are okay. अगर आप चाहो तो आप इतना प्रिंट कराओ, अगर आप चाहते हो तो आप एल्स प्रिंट कराओ. इट डिपेंड्स ऑन यू. तो अभी मैं फिलहाल प्रोग्राम इतना ही रन कर रही हूँ.
I'm giving output 11 and 11. These both values are equal, so the output is printed. अगर ये condition true है तो हमारा ये वाला statement print हो जाएगा, these values are equal. But what if I give the different value 11 and 12? These values are not equal, so nothing is printed here. Nothing is printed here because there was nothing after that. Now if we will write one statement, out of if अगर if के बाद आपने करली ब्रेसेस का पैर नहीं लगाया है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैर नहीं लगा हुआ करली ब्रेसेस का, then only single statement is executed, then your if is finished. Now if is finished, this statement is out of if. This is not in if body. So let's see the output. If I am writing 11 11, okay, I'll beautify the output, slash in 11 1. So these values are equal because this was an if body and the condition was true, so these values are equal, are printed, and after that out of if is printed because it has no concern if this condition is true or false. So if we will give different value 2 and 1, out of if is printed. Okay, out of if is printed because it has no concern with this if. Now when these values are not equal, we want to write something. That part will be written in else. There is no condition written in else. Else में कोई condition नहीं आती. इसका condition सिर्फ यही है कि ये condition false होगी तो ये body लिखी जाएगी. We'll write these values are not equal. 2, 2. These values are equal out of f क्योंकि values equal थे. 2 and 1. These values are not equal and out of if. It means I want to tell you that. Excuse me, ma'am. Sorry for interruption. Yes, sir. Again, I am finding issues. Someone is reviewing someone else. Why you are repeating these things? Participants, why you are repeating these things? Please do not do. Yes, I have a solution. I will just remove all of you from the group, and who will be sending the request, I will allow them to enter into the class. If such thing will happen again, I will just do these things only. I will just remove everyone. Whosoever is giving the request to join the class, he or she will be allowed to join from tomorrow onwards. If you are here for learning, just go for learning. Do not play a game here. If all the teachers and we all are sparing our 2 hours here with you, this is not a joke. So please, this is a humble request and a suggestion too. Please do not repeat such things. Okay, ma'am, please continue. Okay, sir. I was telling that if this condition is true, then this part is executed. If this condition is false, then the part written in else statement, that part is executed. Okay, we have seen the output. 2, 1. These are different. So else part will be executed. These values are not equal. And out of if. This out of if has no concern with this if else. That's why I have written this कि आपको पता होना चाहिए कि if else के बाद जो कंटेंट लिखा है वो चलेगा, इसके बेसिस पे ये कंटेंट चलेगा या ये चलेगा, बट लेटर ऑन जब ये फिनिश हो जाएगा, it has no next statement has no concern with these
if else part, so this will run. Okay, now if I want to write multiple statements in this if, so I'll copy paste. Now in this if, what we are assuming, if this condition is true, then these two lines will be printed, else this part will be printed. Okay, let's execute this. Now it has created a compiler error here. Why this compiler error is here? Because after if there are two lines, it means more than one line, then you have to enclose this text in the pair of curly braces. Else alone cannot be used, else अकेला use नहीं हो सकता. And if you want to use more than one line in if part, then you have to enclose this text in curly braces pair. Now this program will run. Okay, let's see. This program is running, no compiler error, 2 space 2 and 2. I have given two similar values. Now these values are equal. These values are equal. It is written twice because I have written 2 printf there. And after that, else is not executed and it is out of if. Understood this thing? Now if you want to write more than one line in else also, do same thing. सी कंट्रोल V. अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस का पैर नहीं लगाऊंगी, so this will be the out of if else. Okay, and if you want to enclose more than one line in else or if, then you have to enclose it into curly braces pair. Got this? समझ में आया आपको? Yes, One ma'am. question right now. You have to check. This is the question. Control C, and I'm writing this question over here. ये है आपका question. How will you solve this? Write a C program to check whether a given number is even or odd. हम even और odd कैसे check कर सकते हैं? अगर कोई मतलब नंबर है वो डिविजिबल बाय 0, अगर रिमाइंडर 0 दे देता है तो वो इवन है, एल्स हम वो ऑड हो जाएगा. Very good. You have said the word remainder. तो remainder operator कौन सा होता है? हमने कल किया था मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हैं. मॉड्यूलस. और रिमाइंडर हमें किससे प्रोड्यूस करना होता है? 2 से डिवाइड करके. इट मीन्स इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर इज 0, then that number is even. So we will make a program. Now our program will be to check if the number is even or odd. So to check the even odd, we need not to have one more variable. So I am changing the code. Okay, now we are having one variable entered by the user. Now we will write the condition accordingly. If this condition is true, then the number will be even, else the number will be odd. Okay, and if there is one line, you can ignore curly braces. If there is more than one line in if part or else part, then you have to write these curly braces pair. Okay, so for to check if the number is even or odd, what must be the condition? Condition will be that x modulus
2. If this produces true, reduce मतलब अगर इसका आंसर 0 आता है then the number will be even. अगर इसका आउटपुट 1 आता है then it will be odd. So our condition to check if the number is even or odd is this. नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर रीड कर रहे हैं. रिमाइंडर ऑपरेटर इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. If the remainder is 0, then the value will be even. If the remainder is other than 0, it means this condition is false. Then the code will run else part. Then the output will be odd. Understood this part? That this condition will check the even or odd condition. So let's run this. I am inputting the value 4. 4 is the value of even type. Now if I am doing it for value 55, 55 is odd value, so the value is odd. Okay, hope you understood. One more thing I want to tell you. Sometimes क्या होता है कि आप यहाँ पे odd लिख देते हो और यहाँ पे even लिख देते हो. मतलब आपने if वाले पार्ट में else का पार्ट लिख दिया और else वाले पार्ट में if का पार्ट लिख दिया. तो इससे क्या होगा, अगर हम अब प्रोग्राम को चलाएंगे और हम 2 एंटर करेंगे तो ये तो ऑड कह रहा है. क्यों? क्योंकि हमने इफ वाले पार्ट में ही रॉन्ग लिखा है. तो जब आप इफ और एल्स का प्रोग्राम बनाओ तो आप हमेशा ये जरूर चेक करना कि आप इफ की कंडीशन में सही लिख रहे हो, एल्स के पार्ट में आप सही लिख रहे हो. अदरवाइज आपको लगेगा कि आपका प्रोग्राम ही गलत है. ठीक है? These are the common mistakes while making a program. All right. Will you try next questions? मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगी. अगर आपसे नहीं हुए then I will do them. Okay. Let's do this question. Next question है, write a C program to find the largest of 3 numbers. If it is saying to check if the number which number is the largest, 3 numbers में से कह रहे हैं, तो it means we must be having 3 numbers. अब आप में से कोई बताइए कि क्या करना होगा. तब तक मैं प्रोग्राम थोड़ा सा लिख देती हूँ कि 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं. Theoretically you can share your views. Yourself, whosoever wants to answer. You all are very smart. You can answer. Please tell. I think इसमें nested if and else use होगा. Theoretically बताइए. Nesting वो सब मैं कर लूंगी, प्रोग्राम मैं बना लूंगी. आप मुझे theoretically बताइए कि अगर आपके पास 5, 10 और 15 नंबर है तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा? लॉजिकल ऑपरेटर मैम लगाएंगे. इसमें 2 कंडीशन देनी पड़ेगी. अरे कंडीशन नहीं, आप लोग theoretically बताओ, टेक्निकल मत जाओ. मैम जैसे कि मैम ये चेक करा लेंगे कि नंबर 1 जो वेरिएबल है वो नंबर 2 और 3 से बड़ा है कि नहीं. फिर 2 को पहले और तीसरे कंपेयर कराएंगे और तीसरे को पहले और दूसरे से. हाँ, वेरी गुड. तो अब हमें क्या करना है, देयर आर मेनी वेज. पहले तो आप ए को चेक कर लो कि कहीं वो इन दोनों से बड़ा तो नहीं है. अगर वो इन दोनों से बड़ा है तो ए विल बी द बिगेस्ट. इफ यू वांट टू चेक इट फॉर बी देन चेक फॉर ए एंड सी इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी. इफ इट इज ग्रेटर देन बी इज द ग्रेटर. एल्स अगर ये दोनों केस फॉल्स हैं then simply you can say that C is greater, or you if you want you can do it like this कि C अगर सबसे बड़ा है तो आप B और A से चेक कर लीजिए. अदरवाइज आप सिंपली ये भी देख ही सकते हैं, अगर A सबसे बड़ा है तो वो इन दोनों से बड़ा होगा. Else मतलब A नहीं है, B अगर सबसे बड़ा है तो वो इन दोनों से बड़ा होगा. अगर वो भी नहीं है तो बचा C.
then C is the greatest. Okay, program it. There will be many ways to solve this question. तो ऐसा हो सकता है जो आपको आता हो वो मैं ना परफॉर्म करूं, तो there could be many cases. So I'll do कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं, ठीक है. मेरा मेन मोटो है कंसेप्ट, हर तरीका नहीं बता पाऊंगी. So I'll try to tell you the main concept of using if else, not the solving the question. ये particular question पे we will not discuss because there are many ways to solve this question. Now if we want to check, so first of all we will check if x is greater than y. Okay, if x is greater than y, नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि x z से बड़ा है या नहीं है. इस सिर्फ x y से बड़ा है इस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते. तो जो डिसीजन है उसमें हमें एक और डिसीजन लेना है कि क्या इफ x जो है मेरा वो z से भी बड़ा है, क्या x मेरा z से भी बड़ा है. मतलब एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई. तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब आई कैन राइट दैट printf is greatest. ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी मैं एल्स पार्ट को ऐसे ही छोड़ रही हूँ. मैं इस प्रोग्राम को चलो अभी नहीं रन करते, दोबारा लिखते हैं y वाले कंडीशन के लिए. तो अगर मेरा x y से बड़ा है, x z से बड़ा है, तो x इज द ग्रेटेस्ट. एंड this if is written inside another if. This is called nested if. ओके, अगर हम किसी बॉडी को किसी और की बॉडी में लिखते हैं देन दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग. मेन में वी आर राइटिंग इफ, तो इफ इज नेस्टेड इनसाइड मेन फंक्शन. इफ इज रिटन इनसाइड इफ, इट मींस दिस इफ इज नेस्टेड इन दिस इफ. ओके, अब हमें चेक करना है कि अगर ये नहीं चलता तब हम चेक करेंगे दूसरे कंडीशन के लिए, पर दूसरा कंडीशन लिखा जाता है एल्स पार्ट के अंदर. ठीक है, तो अब हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारा y x से बड़ा है या नहीं है. अब अगर हम यहाँ पे ही देखें, अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मैं यहाँ पे आऊंगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मैं यहाँ पे आऊंगी. तो इसका मतलब तो सिंपली यही है कि y x से बड़ा है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर मेरी अबव कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब तो सीधा से ये है कि y इज ग्रेटर देन x. तो क्या मुझे ये कंडीशन दोबारा चेक करने की जरूरत है? नहीं. अगर मैं इस कंडीशन के बाद एक और बार ये चेक कर लूं कि y इज ग्रेटर देन z, क्योंकि ये तो है ही ट्रू, अगर मैं ये और चेक कर लूं देन आई कैन राइट दैट y इज ग्रेटेस्ट. गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे अब सिर्फ ये चेक करना है. तो इस वाले पार्ट में तो मैं सीधा एल्स से आ गई. इस एल्स के बाद यू कैन राइट वन मोर इफ, and in that if you can write y is greater than z. तो this is else if. अगर ये condition false है then it will come in else, and in else you will check one more case and then you will write your decision. Then y is greatest. Okay, पर अगर ये दोनों ही condition ट्रू नहीं होती, ना तो ये ट्रू है ना तो ये ट्रू है, तो सिंपली इन एल्स यू कैन राइट simply in else you can write that
Z is the greatest. ओके, समझिए आप इसे। इसके अंदर हमने एक तो नेस्टेड इफ समझा कि आप इफ के अंदर एक और इफ लिख सकते हैं। दूसरा हमने एक और चीज समझी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एल्स इफ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब ये इस पे आएगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तब ये इस पे आएगा। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। अगर किसी को प्रोग्राम में कोई कुछ गलत दिख रहा हो तो मुझे बता देना। देयर कुड बी द केस कि व्हाइल मेकिंग मैं गलती कर सकती हूँ, आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। So here Z is the greatest. Okay, 5 is X, 10 is Y, and 12 is Z. So Z is the greatest. Now if you want to print the value of Z, you can write it like this: Z and percentile D here. Five, 10. Now Y is greatest because by mistake I wrote 1023 there. Okay, so now Y is greatest, and we will do one more for the X. Now the X is greatest. Okay, एक बार ये कोड आप खुद देख लो कि ये कैसे लिखा गया है। दिस इज द कोड। अब इस कोड के लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, बट आई एम हेयर टू टीच यू द कंसेप्ट्स। सो इफ अगर x y से बड़ा है, इनसाइड दैट हमने चेक किया कि x z से बड़ा है, देन x इज द ग्रेटेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देन इट इज ऑटोमेटिकली ट्रू कि y x से बड़ा है। अगर y x से बड़ा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है कि क्या y z से बड़ा है। तो हमने एल्स के अंदर एक if लगा दिया और उसमें एक और कंडीशन चेक कर ली जो हमें करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन वी रोट आवर डिसीजन दैट y इज ग्रेटेस्ट। ऑब्वियसली अगर x भी बड़ा नहीं है, y भी बड़ा नहीं है, तो z बड़ा होगा, तो हमने z को प्रिंट करा दिया। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया? आप इसे एंड और नॉट से भी बना सकते हो कि अगर x y से बड़ा है एंड x z से बड़ा है, देन x इज द ग्रेटेस्ट। और फिर एल्स में अगर y x से बड़ा है और y z से बड़ा है, एंड लगा सकते हैं हम इसे। मैं इसे चेंज कर देती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये कोड I'll change the code. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Till then I'm changing the code. तो हम ऐसे कर सकते हैं इस कोड को, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, एंड और नॉट लगा सकते हैं कि अगर x y से बड़ा है और x मेरा z से भी बड़ा है तो x इज द ग्रेटेस्ट। अगर y z से बड़ा है, y x से भी बड़ा है, देन y इज द ग्रेटेस्ट, एंड ऑब्वियसली बोथ द कंडीशन आर फॉल्स, देन z इज द ग्रेटेस्ट। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम। लेट्स सी। हिजू मैम एक डाउट है। हाँ हाँ मैम एक बार वो पीछे वाली स्क्रीन जो कोड था वो कर दीजिए। मैम जैसे इसमें लाइन 14 में आपने लिखा है कि प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटेस्ट, फिर जेड, मतलब उसका वो दिया परसेंटाइल डी, पर लेकिन जो ऊपर जैसे प्रिंट एफ लिखा है जैसे वाई इज ग्रेटेस्ट, तो उसमें नहीं लिखा। तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये है? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आई वॉज थिंकिंग कि मैं रीनेम कर दूं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे मन में आए। इफ दैट इज मैथमेटिकली हो सकता है तो वो हम कर सकते हैं।
ओके मैम, ओके, बस वो थैंक यू। यही होता है, 3 लाइनों में सेम चीजें लिखना और कुछ नहीं. बट वेरी गुड क्वेश्चन, वी कैन डू दिस इन एवरी स्टेटमेंट. ओके ओके मैम, Okay. थैंक यू। I'm thinking we should go for this or not. Okay, one more question. ये आप easily अपने मतलब verbally you can solve this. There is a question. If you can vote or not. तो हमें check करना है on the basis of age of the student कि वो vote कर सकता है या नहीं कर सकता. तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या condition लगेगा? मैम एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर वोट कर सकता है, नहीं तो एल्स मतलब नहीं कर सकता. तो सिंपल इफ एल्स है. इफ के अंदर आपको सिर्फ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लगाना है. एल्स में यू आर नॉट एबल टू वोट. डू यू ऑल नो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल? यस मैम. यस मैम. ओके, Yes, ma'am. सो अगर हमें ये चीज चेक करनी है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है या क्या है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? साइड लिख के इक्वल का साइन Sides लगा are के. equal, then it will be क्या equilateral. लेना है हमें? एंगल, साइड, साइज, क्या लेना चाहिए? Side, एंगल. angle. एंगल ले सकते हैं हम. ठीक है, तो एंगल फॉर इक्विलेटरल अगर तीनों इक्वल हैं, तो अगर बाय मिस्टेक किसी ने 53, 53, 53 दे दिए, तो क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? नहीं. नहीं ओके, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल? मैम तीनों The sum एंगल of 60 60 60 वेरी गुड. 180 यस. 60 60 60. हाँ, यूजर से 3 एंगल्स इनपुट कराएंगे, बट वी विल नॉट मेक दैट चेक कि a इज इक्वल टू बी और मतलब a डबल इक्वल b इज इक्वल टू c. ये नहीं चेक करेंगे. हम तीनों के लिए ये चेक करेंगे कि तीनों की वैल्यू 60 है या नहीं है. अगर वो तीनों की वैल्यू 60 है, देन दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. फिर आइसोसेलेस की भी ऐसे ही स्मार्ट हमें चेक करनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन हो सकती है. देन सिमिलरली फॉर स्केलिंग, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो ऑब्वियसली दैट विल बी स्केलिंग. तो ये हम एल्स पार्ट में लिख सकते हैं. ओके, आपको इफ एल्स नहीं एल्स इफ समझ में आया? एल्स इफ. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि ये जो एल्स है, अगर आपके पास कोई if नहीं है, you cannot run only if statement. else statement को corresponding if statement चाहिए. This else is for only if statement, Control Z. But अगर आपके पास कोई if statement है, it does not bother कि else statement है या नहीं है. ओके, आंसर अभी गलत आएगा. So I'm just telling you that every else statement must have a corresponding if statement, but if statement doesn't want any else if or else statement. उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी कंडीशन ट्रू है या नहीं है. की पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो आप ये करली ब्रेसेस का पेयर हटा सकते हो, इट इज वैलिड. बट इफ यू आर हैविंग मोर देन वन स्टेटमेंट इन इफ to execute, then you have to use these curly braces pair. Okay, this is very important. If you will not use curly braces pair for more than one statement, तो आपके प्रोग्राम में गलतियां आएंगी. Okay, so let's end if here I will send you all of these questions to WhatsApp. आप ट्राई करके देखना. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कल मुझसे पूछना. Okay, next topic will be switch. Decision control statements कर रहे थे हम, उसमें पहला हमने if else किया, दूसरा we are doing switch. Now switch क्या होता है? There are cases जब if else के अंदर बहुत सारी conditions बन जाते हैं that if this तो ये करो, else do this, else if do this, else if do this. तो else if अगर हमारे 100 लग जाए, तो if else if में क्या होता है कि every condition is checked.
if is checked, else if is checked, again else if is checked. So there could be a case that we are having if, then we are having else if, now if this is the drawback of if, why switch is here. So there could be a case in if else कि आपकी सीधा ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मतलब इसका बॉडी चलना चाहिए, but before that your compiler will read this, then this, then this, then this, then this, then this. It means आपके कंपाइलर को तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, उसको हर थोड़ी देर में एक नया इक्वेशन चेक करना पड़ रहा है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग, स्पेस कंज्यूमिंग, इट इज वेरी बैड. सो अगर ऐसे कंडीशंस हैं दैट देयर आर मेनी केसेस and if you want to jump to a particular case, there could be hundreds of else if, and the easily if you can rectify that to which case you can jump to. अगर आपको पता है कि रोल नंबर 9 पर जाना है तो क्यों आप 1 2 3 4 5 6 7 8 के पास जा रहे हो, आप डायरेक्टली 9th रोल नंबर के पास चले जाइए. So this is the drawback of if, that there could be many cases and compiler will read all of these cases, and this is very bad for the compiler to read all of these unnecessary cases. अगर आप इससे कोई स्मार्ट तरीका ढूंढ सकते हो to directly jump to that particular statement, then that is beneficial. Now this something can be achieved by using switch. स्विच का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, दैट व्हाई वी आर हैविंग स्विच. देयर कुड बी द केसेस इन इफ कि हमें बहुत सारा कोड करना पढ़ना पड़े, हमें एक स्मार्ट तरीका रीड करना है जिसमें मल्टीपल केसेस बनाएंगे एंड वी विल डायरेक्टली जंप टू दैट केस, और उस केस को हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड वी विल गेट आउट ऑफ दैट. वी विल नॉट बी रीडिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ओके, सो स्विच इज ऑल्सो अ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. Which is also a decision control statement in which we will write some expression and there will be some cases. Okay, I'll write beautiful here. Switch, इसका syntax समझना. In switch again we will write some condition Excuse me, ma'am. One announcement is there. Okay. Actually, I have sent the attendance sheet in the chat box. So all the participants are requested to just fill the attendance sheet. And what we have decided today, we are not going to share the attendance sheet in the WhatsApp group, because here in the chat box only 100 and 105 participants are there. And at the end of the day, when I'm getting the attendance sheet, it is 150, 170. It means there is fake data we are receiving. Yes, sir. So from today onwards, we will just share the link of attendance here in the group only. Okay, sir. Okay, please continue. Thank you. Okay. Maybe I'll continue for 5 minutes or 10 minutes more. I'll not end the session at 12 because I want to finish this switch today only. So in switch, we'll be having one condition over here. That condition can result to the integer value or character value. Okay, it means if में क्या हो रहा था, there was a condition but that was true
or false. In switch we are having a condition that may result to the value, ये एक value answer करेगी and that value could be an integer or character. Okay, so for integer it could be like 1 2 3 23 23 100, and for character it could be like A B C D. Okay, so here we will write one condition that can result to integer or character value. Then in switch we are having a case keyword in which we will write this value. This value can be integer or character. Then we will write colon and then statements which will be executed. Okay, जब ये statements execute हो गए, it means there could be multiple cases. Now here you can make tens of cases. How it is different from if I'll tell, तो हम यहाँ पे multiple case बनाते हैं. तो this could be value 1, value 2. अगर ये 2th value है तो इसके statements होंगे. Now there could be multiple cases. Okay. Now in switch there is a condition which can result to integer or character. These are the values. It could be 1 2 3 A B C. Now we will in switch in the curly braces pair we will write that value, whatever that integer value or character value could be. अगर ये केस पर हमारा कोड आता है then these statements will be executed. I will perform this on Turbo C because there we can see it beautifully that how it is executed. Quickly I am writing a program. This is Turbo C compiler. Here we will write the condition. Let's say that condition is X, or in next we will change the condition on the basis of question. So इसकी हम value user से ले रहे हैं. Then we will design some of the cases for this. These tabs are important. I am telling you for you all that case 1. Then we will write this statement printf.
अब हमने इस प्रोग्राम को चला लिया, बट अब वी आर ऑन टर्बो सी, सो आई हैव टू राइट and I have to write okay, so control F9. The program, let's say the value of 4, the value is 4. Okay, हमारा प्रोग्राम अभी चला नहीं. If x is now see, अभी मैंने प्रोग्राम में क्या किया है, मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया 4. मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है अभी, मतलब कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं लगाई है. यूजर से मैंने वैल्यू लिया x एंड इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4 then it will check the corresponding case. Okay, so it will jump to corresponding case. So let's see the execution. मैं F7 प्रेस कर रही हूँ, तो F7 से अपने आप कंट्रोल मूव होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट क्या होगा. तो आफ्टर दिस क्लियर स्क्रीन इज एग्जीक्यूटेड, then printf is executed, then scanf is executed. I have pressed 4 and enter, then F7, then case 1 is read, 2 is read, 3 is read, 4 is read, and then get ch, and every statement is executed. Why? Because here we didn't use the phrase statement. It means basically क्या होता है कि अगर x की वैल्यू हमारी 4 है तो डायरेक्टली it must jump to this. So I'll do one more. This is greater than, let's see, मैं प्रोग्राम को पहले सेव कर देती हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट. तो जो भी ये कंडीशन होती है, उस कंडीशन का जो भी रिजल्टेंट होगा, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली उस रिजल्ट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर केस पे जंप करता है. जैसे इसका अगर रिजल्टेंट हमारा 4 है, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम थोड़ा सिली सा बनाया है, तो वो मैं कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रीड करके आई चेंज द प्रोग्राम. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, जो भी इसका रिजल्टेंट होता है उस केस पर डायरेक्टली वो जंप करता है, एंड देन दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी. अगर इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू 4 है, देन डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगी. तो जो अननेसेसरी रीडिंग हमारी इफ एल्स के अंदर हो रही थी, इफ एल्सिफ वाले पार्ट के अंदर, वो हमारी स्विच केस के अंदर नहीं होती है. Okay, this is the difference between switch and if. Okay, now we will read some of the question of if and we will execute these. तो हम इस वाले question को लेते हैं. That write a C program to check whether an alphabet is a vowel or consonant. ठीक है, तो vowel या consonant हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम कोई कैरेक्टर इनपुट लेंगे, अगर वो कैरेक्टर हमारा AEIOU है तब वो वोवल होगा, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट होगा. तो वी विल मेक द केसेस कि अगर वो वेरिएबल हमारा AEIOU है तब हम लिखवा देंगे कि दैट इज वोवल. एल्स इसमें नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है, वी विल सी दिस. ओके, तो हम उस वाले पार्ट में उसे कॉन्सोनेंट लिखवा देंगे. वी विल नॉट राइट ऑल कॉन्सोनेंट्स, हम उसके लिए डिफॉल्ट यूज करते हैं जो हमारे स्विच के अंदर होता है. तो वी विल मेक दिस प्रोग्राम, आई विल चेंज इट. वो AEIOU के लिए बनाने हैं.
तो अगर हम कैरेक्टर कांस्टेंट लिख रहे हैं तो वो हमारा सिंगल कोट के अंदर आएगा, सिंगल ए, सिंगल ई, सिंगल आई, single O. Here I'll copy one more, shift insert, and single E quotes. Okay, so these all are the vowels. Okay, my printf statement is wrong. One more thing, there could be capital A, capital E, capital I, so I'll copy all these here for capital letters क्योंकि हमें सारे cases लेने हैं. Copy and paste. I'll change all of these to capital letters. अदरवाइज हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा अगर हम सारे केसेस नहीं लेंगे तो. ए, तो हमने वॉवल्स के सारे केसेस ले लिए, तो जो भी पॉसिबल केस. हाँ जी मैम वहाँ यू होगा मैम, ए ई आई यू जो आपने स्मॉल में लिखा है ना, अच्छा, मैम दो जगह. ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. स्मॉल यू. अब केसेस हमारे कंप्लीट हो गए. रिडंडेंट केसेस थे वो रॉन्ग था. अगर हम वो चलाते तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा रॉन्ग चलता. तो आई चेंज दी स्टेटमेंट्स. और I'll write it 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अदरवाइज बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही चला दिया. ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं. अभी हमारा प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, ये थोड़ा गलत चलेगा, मैं आपको इसको सही करना सिखाऊंगी. ठीक है, तो स्विच के अंदर हमारा यहाँ पे कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन होती है, जैसे यहाँ पे ये सी है, इट मे रिजल्ट टू इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू. हियर वी हैव टेकन कैरेक्टर वैल्यू. ये जिससे मैच होगा इसको डायरेक्टली उस केस पे जंप करना चाहिए और फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने चाहिए. ठीक है, तो वी विल डू दिस राइट नाउ. ऑल्ट F9. एक्स के ऊपर मैं कर रही हूँ, सी के ऊपर नहीं कर रही. कंट्रोल F9. सो आई एम राइटिंग स्मॉल यू. सी द आउटपुट इज फ्रॉम स्टेटमेंट 6 7, मतलब जो स्टार्टिंग केस जो चला है दैट इज स्टेटमेंट 6, और उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट्स चले हैं. बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट. यही तो मुझे अवॉइड करना था. तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये वाला चला, तो दैट इज करेक्ट. F7 आई एम प्रेसिंग. आई हैव टेकन स्मॉल यू, एंटर F7. तो डायरेक्टली ये मेरे उस केस पे तो जंप कर गया, बट दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसको मतलब जंप करने के बाद इसे केस ए पर नहीं आना है, बिकॉज इट इज इररेलेवेंट. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इट मीन्स जब कोई पर्टिकुलर केस चल जाए उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस स्विच से बाहर आ जाना चाहिए. तो बाहर आने के बाद क्या होगा वो मैं पहले प्रिंट करा देती हूँ. आउट ऑफ इफ नहीं स्विच. तो इस यू के बाद अगर मैं इस फ्लो को, ये जो फ्लो चल रहा है, इसको ब्रेक करना चाहती हूँ तो देयर इज अ कीवर्ड ब्रेक. अगर अब मैं केस यू चलाऊंगी, तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, but later on a break will be encountered and that break will break the flow. ये यहाँ से इसको ब्रेक करके डायरेक्टली एग्जिट करवा देगा. ओके, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा. सो लेट्स सी हाउ विल इट रन. F7 से हम प्रोग्राम का फ्लो चेक करते हैं. तो मैंने लिया कैपिटल यू, एंटर.
F7 डायरेक्टली मेरा केस पर आ गया। अब ये इस printf को प्रिंट करा देगा। फिर ये ब्रेक रीड करेगा। ब्रेक क्या करेगा? करंट फ्लो को एग्जिट करेगा। करंट फ्लो को एग्जिट करके इसने जो नीचे के सारे AEIOU हैं जो मेरे पिछले फ्लो में चल रहे थे वो सारे अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ब्रेक ने मेरा फ्लो तोड़ दिया। ठीक है, और यही हम चाहते थे कि मेरा जो पर्टिकुलर केस है डायरेक्टली वो जंप हो, और उसके बाद अगर मैं कुछ चलाना चाहती हूँ तो मैं ब्रेक नहीं लिखूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि वो ब्रेक हो तो मैं ब्रेक लिखूंगी। इट मीन्स अगर मुझे इसके हर केस के बाद मुझे ब्रेक चाहिए then I will write break after every statement. It depends on your program कि आपको flow कैसा रखना है। Yes, some noise is coming. Mute yourself. हाँ, तो अगर मैं प्रोग्राम के अंदर कोई फ्लो को तोड़ना चाहती हूँ तब I will write break. Okay, I'll again execute and write capital A। तो स्टेट लिखा हुआ था बस वहां पे, तो वो प्रिंट हुआ और आउट ऑफ स्विच प्रिंट हुआ। तो टू ब्यूटिफाई माय आउटपुट आई प्लेस सेशन ओवर हियर। ओके, अगर मैं स्टेटमेंट 3 रीड कराती हूँ, अब यहाँ पे तो कोई ब्रेक नहीं है तो मेरा प्रोग्राम कैसे चलेगा? स्टेटमेंट 3, 5, 6, बट जैसे ही 6 रीड होगा उसे ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेक मिल जाएगा तो वो एग्जिट मार जाएगा। तो लेट्स टेक I as input. I'll do it by this F7. I लेना है मुझे स्मॉल, एंटर F7। तो डायरेक्टली केस I पर आया, केस O रीड हुआ क्योंकि ब्रेक नहीं था इन बिटवीन। फिर केस U रीड हुआ क्योंकि ब्रेक नहीं था इन बिटवीन। देन लेटर ऑन ब्रेक रीड हुआ। जैसे ही ब्रेक रीड हुआ इसने एग्जिट ले लिया। तो ब्रेक का यूज समझ आया आपको? होपफुली आया होगा। जिसको प्रॉब्लम है अभी मेरे से पूछ लो, बिकॉज आई चेंज द कोड नाउ। मैम जो आपने केस कैपिटल ए लिखा, जैसे इनपुट अगर हमने आउटपुट स्क्रीन पर अगर कैपिटल ए लिख दिया है तो उसके बाद ये जो ऊपर के जो स्मॉल केसेस है वो रीड नहीं करेगा, डायरेक्ट कंपाइलर ए पे जम करेगा कि नहीं? यस करेगा। ये देखो मैं चला देती हूँ प्रोग्राम को। देखो अब हम कैपिटल ए लेते हैं, तो कैपिटल ए लेंगे, कैपिटल ए एंटर। तो अब इसे डायरेक्टली केस कैपिटल ए पे जंप करना चाहिए, तो डायरेक्टली जंप किया। बट अब मैंने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाया है तो अब मेरा फ्लो नहीं टूटेगा। तो अब E भी रीड हुआ, I भी रीड हुआ, O भी रीड हुआ, U भी रीड हुआ, और उसके बाद इट विल टेक एग्जिट क्योंकि आगे कोई केस ही नहीं है। तो ये आउट ऑफ स्विच पे आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरा आउटपुट हो गया। तो अगर आपको फ्लो तोड़ना है तो आप ब्रेक लिखते हो, अदरवाइज आप नहीं लिखते हो। अच्छा, पर अब हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कॉन्सोनेंट, हाँ मैम वन थिंग, मैम अगर हमारे पास जो केस वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है बट जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक ही केस के अंदर मतलब बहुत सारी वैल्यूज डाल के सेम स्टेटमेंट लिख लें? ये मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ। यू विल गेट आंसर इन 2 मिनट्स। ओके मैम, आपका ठीक है। ओके मैम। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरे वॉवल्स हो गए। अब मेरा केस है कि मैं Z एंटर करूं तो मेरा कॉन्सोनेंट प्रिंट होना चाहिए। तो फॉर दैट देयर इज केस डिफॉल्ट केस, मतलब जब कुछ नहीं चलेगा तो ये चलना चाहिए। तो हम डिफॉल्ट में लिखेंगे printf this is consonant, or we can write it like this, that percentile C is consonant comma x was the variable semicolon। ओके, तो अब अगर मेरा जो वेरिएबल है वो मैंने प्रेस किया Q, तो दिस इज द कॉन्सेंट, तो Q इज कॉन्सोनेंट। अब द क्वेश्चन वाज कि A E I O U सारे तो वॉवल हैं तो मैं बार बार स्टेटमेंट क्यों लिखूं? तो ब्रेक का मतलब आपको समझ में आ गया। तो मैं अब इन सबको क्लियर करूंगी। क्लियर होता है कंट्रोल डिलीट।
इधर माउस बहुत अच्छे से काम नहीं करता, तो ये थोड़ा सा मेसी होता है इसे यूज करना। तो अब मेरे ए ई आई ओ यू सारे ही तो वॉवल है, तो मैं बार बार हर किसी में एक अलग चीज क्यों लिखूं? दो अगर मेरा प्रोग्राम ही उसी टाइप का होता कि मुझे हर केस में कुछ और लिखना है, तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रेक कराना है तो हम ब्रेक करा सकते हैं। बट इन दिस प्रोग्राम हमें हर चीज के बाद यही लिखवाना है दैट दिस कैरेक्टर इज वॉवल। तो हम यहाँ पे सिंपली ये लिख देते हैं दैट इनपुट इज वॉवल, सिंपल। तो अब वो कहीं पे भी आएगा बट लेटर ऑन इट विल कम ऑन वॉवल। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब ब्रेक इज इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी द आउटपुट। इनपुट मैंने लिया कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए मैंने कैपिटल लिया। तो अब ये मेरा जंप करेगा डायरेक्टली इधर, मतलब इसने ए को रीड किया बट इट वाज सो क्विक कि इसने सारे केसेस को रीड करते हुए डायरेक्टली इनपुट इज वोबल को प्रिंट कराएगा। पर अब इसने एक गड़बड़ कर दी, इसने सी इज कॉन्सोनेंट को भी प्रिंट कराया। लेट्स सी द आउटपुट। इसने इनपुट इज वोबल तो प्रिंट कराया बट द वैल्यू विच वाज ए, इसने उसको भी रीड करा दैट ए इज कॉन्सोनेंट। तो वो तो हमें रीड नहीं करना। इट मीन इस स्टेटमेंट का फ्लो जो है वो ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक। मेरा वोवल रीड हो जाएगा, उसके बाद ये जो अभी कॉन्सोनेंट प्रिंट हुआ था ये प्रिंट नहीं होगा। अब हम चलाते हैं इसे दोबारा। एंटर। ने डायरेक्टली इनपुट इज वोबल प्रिंट कराया एंड इसे ब्रेक एनकाउंटर हुआ एंड लेटर ऑन इट गॉट आउट ऑफ स्विच। ठीक है, तो इनपुट इज वोबल प्रिंट हुआ एंड इट गॉट आउट ऑफ स्विच। अगर आप यहाँ पे परसेंटाइल सी लगाते हो then see the output, control F9. Let's say take capital A, then capital A input is vowel. ठीक है, मैम आप म्यूट हो। बोला था मैं लास्ट, what was my last line? Hello, am I audible? Hello, hello. Yes ma'am, you are audible. ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी दैट ब्रेक इज यूज लाइक दिस कि अगर आपको कहीं पे भी कंट्रोल तोड़ना है आप तोड़ सकते हो और प्रिंट करा सकते हो आप वेरिएबल को। डिफॉल्ट इज द केस जब कोई भी केस नहीं चलेगा मैचिंग केस, देन डिफॉल्ट इज रन। डिफॉल्ट आपका तब रन करेगा जब आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है। एंड दिस इज द वेरिएबल जो आपका इन वैल्यूज को मतलब मैच करने के लिए यूज होता है। इसका रिजल्ट दिस x जो है यहाँ पे, इसका रिजल्ट इन केसेस से मैच होता है। देन यू कैन राइट द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू ब्रेक द फ्लो यू कैन ब्रेक द फ्लो। इफ देयर इज नो मैचिंग केस then default is run and after that the program will run freely. Okay, so now this was switch. There are more questions on switch but now we will continue tomorrow. So we have done so many things today. If switch, tomorrow we will do one example of switch and then we will move to loops which are very important. Okay, so Okay, if ma'am. you are having any question you can ask
and the topics are finished for today. So anyone having any question?